Hello friends, in this lecture we will start from the electrostatics of conductors. Conductors and insulators we have also described in chapter 1. Conductor contain the mobile charge carriers. Until conductors में क्या होते हैं? Mobile charge carriers होते हैं. In a metallic conductors, these charge carriers are electrons. In a metal, the outer valence electrons part away from their atom and are free to move. These electrons are free within the metal, but not free to leave the metal. So the free electron from a kind of gas, they collide with each other with the ions and move randomly in a different direction. In an actional field, they drift against the direction of the field. Because हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन अपोज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के. अगर सपोज़ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है, ये आपकी अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ओके. इफ दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रॉन will move from negative to positive. This will be the direction of electron, okay. The positive ion made up of a nuclei and the bound electrons remain held in their fixed positions. In the electrolyte conductor, the charge carriers are both positive and negative ions. इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स दोनों ही होते हैं, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और नेगेटिव आयंस भी होते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. But the situation in this case is more involved. The movement of charge carriers is affected by the actional field as also by so-called the chemical forces. Now the next is inside the conductor, electrostatic field is zero. Consider a conductor neutral or charged. There may also be an actional electrostatic field. In the static situation, when there is no current inside or surface of the conductor, the electric field is zero everywhere inside the conductor. This fact can be taken as the defining property of a conductor. The conductor has a free electrons as long as the electric field is not zero. The free charge carriers would experience a force and drift in the static situation. The free charge have so distributed themselves that the electric field is zero everywhere inside. The electrostatic field is zero inside a conductor. So you must learn the things. The electric field inside any conductor. Suppose that this is the conductor. So inside any conductor, the electric field is zero because it does not contain any charge. The charge is remain on the surface. Second, at the surface of the charged conductor, the electrostatic field must be normal to the surface at every point. और सरफेस पर जो फील्ड होता है, ये आपकी सरफेस है. सपोज दैट सरफेस पर आपके ये आपके चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज सरफेस है कोई, मान लीजिए. सपोज दैट दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज surface. Therefore, E should have no tangential component. Thus, the electrostatic field at surface of charged conductor must be normal to the surface of every point. Suppose that this is your direction, this will be the electric field direction. Here, this will be the electric field direction. So these are the directions of the electric field. Okay, these all are the. तो जो सरफेस पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉर्मल होता है सरफेस के प्रत्येक पॉइंट के, है ना, प्रत्येक पॉइंट के ऐसा होता है, नॉर्मल होता है. सो द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन. न्यूट्रल कंडक्टर में क्या होता है? इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एवरी स्मॉल वॉल्यूम और सरफेस एलिमेंट. When the conductor is charged, the excess charge can reside only on the surface in the static situation.
दिस फॉलोज फ्रॉम द गॉस लॉ, ये गॉस लॉ से फॉलो करता है। गॉस लॉ क्या कहता है? कंसिडर एनी आर्बिट्रेरी वॉल्यूम एलिमेंट v inside a conductor. So on the closed surface S bounding the volume element v, electrostatic field is 0. Thus the total electric flux through the S is 0. Hereby the Gauss law, there is no net charge enclosed by S, but the surface S can be made as small as you like. The volume v can be made vanishingly small. This means there is no net charge at any point inside the conductor, and any excess charge must reside the surface. Fourth point is electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor and has the same value as inside its surface. This follows from the result 1 and 2. मतलब 1 में हमारा रिजल्ट क्या था? 1 में हमारा रिजल्ट था कि इनसाइड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और 2 में क्या रिजल्ट था? 2 में रिजल्ट था कि सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो नॉर्मल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कंडीशन होती है वो सरफेस पे नॉर्मल होती है, ठीक है। तो इनसाइड एंड हैज़ नो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑन द सरफेस, तो सरफेस पे कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है, तो नो वर्क इज़ डन इन मूविंग ए स्मॉल टेस्ट चार्ज विद इन द कंडक्टर ऑन इट सरफेस। मतलब कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा आपको, कोई भी चार्ज अगर टेस्ट चार्ज आप लेके आ रहे हो कंडक्टर पर या उसके सरफेस पर। सपोज दैट ये कंडक्टर है, तो यहाँ पर अगर आपका पॉजिटिवली चार्ज है कंडक्टर पूरा, मान लीजिए सपोज दैट ये आपका this is your positively charged conductor and you are taking the small test charge q from infinite। अगर इन्फानाइट से आप यहाँ लाओगे, इसके सरफेस पर लाओगे या अंदर लाओगे, यू विल हैव डोंट डू टू एनी वर्क, यू डोंट हैव टू डू एनी वर्क। आपको कोई भी कार्य नहीं करना होगा, आपको कोई भी कार्य इसके लिए नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी कोई भी आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नॉर्मल है, और अंदर इनसाइड 0 है, तो अभी कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो सेम पोटेंशियल पर है ना। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दैट विल फाइंड आउट। E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एन कैप, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, वेयर सिग्मा क्या है, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी है आपकी, एंड एन कैप, व्हाट इज द एन कैप? एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, और वो भी कैसा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। सपोज दैट ये आपका सरफेस है, तो ये एन कैप कैसा होगा, यूनिट वेक्टर होगा नॉर्मल टू द सरफेस। टू डेराइव दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट को अगर हमको डेराइव करना है गॉस लॉ से, चलिए इसको डेराइव करते हैं। चूज़ ए पिल बॉक्स और ए शॉर्ट सिलेंडर, ये एक शॉर्ट सिलेंडर हो गया। एज द गॉसियन सरफेस अबाउट एनी पॉइंट P ऑन द सरफेस एज शोन इन फिगर 2.17, द पिल बॉक्स इज पार्शियली इनसाइड एंड पार्शियली आउटसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इट हैज़ ए स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डेल्टा एस, दिस वन इज ए स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, है ना। Thus the contribution of the total flux through the pillbox come only from the outside cross section of the pillbox. This equals to the क्या होगा, प्लस माइनस डेल E डेल S, पॉजिटिव फॉर द सिग्मा इज ग्रेटर देन 0 और नेगेटिव फॉर द सिग्मा इज लेस देन 0। So the charge enclosed by the pillbox by the Gauss law E del S is equals to sigma by epsilon 0 del S, okay। So we can find out E is equals to sigma by epsilon 0. So include the fact that electric field is normal to the surface. We get the vector relation from equation 2.35, this one, this equation, okay, which is true for the both signs. Sigma mod if is sigma is positive if the electric field is normal to the surface outward. If sigma is less than 0, the electric field is normal to the surface inward. Next topic is electrostatic shielding. So consider a conductor with a cavity with no charge inside the cavity. A remarkable result is that the electric field inside the cavity is 0. Whatever be the size and shape of the cavity
and whatever be the charge on the conductor, an actional field in which it might be placed. So we have proved a simple case of result already. The electric field inside a charged spherical cell is ज़ीरो. मतलब किसी भी चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर, चार्ज सपोज दैट ये आपका स्फेरिकल सेल है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी द ज़ीरो दैट वी हैव स्टडीड. कि अंदर आपके इस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ज़ीरो होगा, है ना. नेक्स्ट है इसका, ये इसी को समझा रहे हैं. देखिए इस द प्रूफ ऑफ द रिजल्ट नोटेड इन फिगर 2.18. ये 2.18 फिगर है. द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी ऑफ एनी कंडक्टर. ये कैविटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर ज़ीरो होगा, कोई चार्ज डेंसिटी नहीं होगी, और पोटेंशियल जो रहेगा वो सरफेस पे जो पोटेंशियल रहेगा वही पोटेंशियल जो है वो इनसाइड भी रहेगा. ठीक है, वही पोटेंशियल कहाँ रहेगा, इनसाइड रहेगा. यहाँ पर सरफेस पे v इक्वल्स टू वी ज़ीरो कॉन्स्टेंट. अगर सिग्मा इज़ लेस देन ज़ीरो है यहाँ भी सिग्मा इज़ लेस देन ज़ीरो है, और यहाँ पर सिग्मा ग्रेटर देन ज़ीरो, यहाँ भी ग्रेटर देन ज़ीरो है. तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये कंडक्टिंग बॉडी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आउटवर्ड रहेगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है बिकॉज नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है. तो आपको चार कंडीशन दी गई हैं. ई इक्वल्स टू ज़ीरो, सिग्मा इक्वल्स टू ज़ीरो, वी इक्वल्स टू वी नॉट. दूसरी कंडीशन है सिग्मा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ई इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन ज़ीरो. ओके, एंड थर्ड कंडीशन इज वी इक्वल्स टू वी नॉट, एंड फोर्थ वन इज द इक्वल्स टू सम इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर. तो अब एक एग्जाम्पल है, प्रॉब्लम वो देख लेते हैं. अ कॉम्ब रन थ्रो वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर वाई. जैसे ही आप कंघी को एक सूखे बालों से अट्रैक्ट करते हो, उसको कॉम्ब को रन करते हो, चलाते हो बालों पर, तो वह कुछ छोटे पेपर के टुकड़ों को अट्रैक्ट करती है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कॉम्ब गेट चार्ज बाय द फ्रिक्शन इन द मॉलिक्यूल्स इन द पेपर. जो मॉलिक्यूल्स हैं पेपर में, दे आर गेट पोलराइज बाय द चार्ज कॉम्ब रिजल्टिंग इन अ नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. पोलराइज हो जाते हैं वो इस तरीके से, इफ़ एयर इज़ वेट और इफ़ इट इज़ रेनी डे. अगर मान लीजिए रेनी डे होगा तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो फिर भी वो अट्रैक्ट नहीं करेगा. रेनी डेज में विल नॉट अट्रैक्ट द स्मॉल पिट ऑफ पेपर. अगला है कि ऑर्डिनरी रबर इज़ एन इंसुलेटर बट स्पेशल रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग. अब देखिए, वैसे रबर कैसी होती है हमारी, बिकॉज एयरक्राफ्ट के जो टायर्स हैं वो स्लाइटली कंडक्टिंग इसलिए बनाए जाते हैं कि कोई भी अगर स्टैटिक चार्ज अगर आ रहा है तो वो स्टैटिक चार्ज वहाँ से होके उसका क्या हो जाए, अर्थिंग हो जाए उसका. ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा, अगर नहीं हुआ, देखिए, टू इनेबल दैम टू कंडक्ट चार्ज प्रोड्यूस बाय द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन से जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है वो ग्राउंड के साथ में निकल जाएगा. अगर नहीं होगा तो फिर स्पार्क हो जाएगा और रिजल्ट फायर में बदल जाएगा, है ना. उसी प्रकार से सी का रीज़न है. और चौथे का जो रीज़न है वो क्या है, करंट पासिस कब होगा, जबकि पोटेंशियल में डिफरेंस हो. अगर आप बोलो कि भाई ये एक तार है आपका, ये एक तार है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, हवा में लटका हुआ तार है, और इस पर मान लीजिए बहुत ही हाई पोटेंशियल आपकी लाइन है ये, तो अगर इस पर कोई चिड़िया आपकी बैठी भी है, इस पर मान लीजिए कुछ बैठा है, चिड़िया बैठी है, कुछ भी बैठा हुआ है आपका, तो इसको करंट तो लगेगा नहीं, क्योंकि अर्थिंग नहीं है ना. जब तक पोटेंशियल नहीं हो, नेगेटिव पोटेंशियल नहीं होगा, तब तक सर्किट ही पूरा नहीं होगा. सर्किट कहाँ से पूरा होगा, सर्किट जब पूरा हो जाए टच करेगा, नहीं तो सर्किट तो पूरा होगा नहीं, तो शॉक भी नहीं लगेगा. अगला है डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन. चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, बिकॉज फिजिक्स में डाइलेक्ट्रिक्स का बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंस है. तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस, कंडक्टिंग नहीं होते. इन कॉन्ट्रास्ट टू द कंडक्टर्स दे हैव नो और negligible number of charge carriers. Recall from the section 2.9 what happens when a conductor placed in an actional electric field. क्या होता है, the free charge move and charge distribution in the conductor adjust itself in such a way the electric field due induced charge oppose the
इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब उसको अपोज करेगा। तो अगर मान लीजिए ये आपका यहाँ पर दो फिगर दिए हुए हैं आपके, कंडक्टर का है, ये डाइलेक्ट्रिक का है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। कंडक्टर में क्या होगा कि नेट टोटल जो फोर्स होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा E0 प्लस EN, वो बैलेंस हो जाएंगे, ज़ीरो होंगे। लेकिन डाइलेक्ट्रिक में वो बैलेंस नहीं होंगे, है ना। ये फ्री कनेक्टिविटी रहेगी कंडक्टर में, और यहाँ पर ये पोलराइजेशन हो जाएगा। अगर पोलराइजेशन है इसका मतलब है ज़ीरो नहीं है, नेट फील्ड जो है वो ज़ीरो नहीं है ना। तो इट टर्न्स आउट द एक्सटर्नल फील्ड इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट बाय स्ट्रेचिंग और रीओरिएंटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। So the collective effect of all molecular dipole movement is the net charge on the surface of dielectric, which produce a field that opposes the external field. Unlike a conductor, however, opposing field so induced does not exactly cancel the external field. मतलब exactly वो उसको cancel out नहीं कर पाता, और वहाँ पर only कम कर पाता है, और वहाँ पर कुछ polarization होता है, कुछ polarization होता है, इस वजह से ही वो डाइलेक्ट्रिक कहलाता है कि उसमें कुछ polarization है, ठीक है। तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस में भी पोलर और नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कंसाइड होते हैं। ये नॉन पोलर हैं। यहाँ पर H2 का अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर ये कंसाइड हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। CO2 में भी कंसाइड हैं, लेकिन HCl में कंसाइड नहीं है और H2O में भी कंसाइड नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर पोलराइजेशन है, यहाँ पर पोलराइजेशन है। The molecules of a substance may be a polar or non-polar. In a non-polar molecules, the center of positive and negative charge coincide. The molecules then has no permanent movement. The example of non-polar molecules are oxygen and hydrogen molecules, which because of their symmetry have no dipole movement. On the other hand, a polypolar molecule is one in which the center of positive and negative charges are separated even when there is no external field. They are separated, कंसाइड नहीं होते, है ना, कंसाइड नहीं हो रहे। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंसाइड नहीं है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे में कंसाइड होते हैं, ठीक है। तो आयनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होगा, HCl, और मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर H2O आर द पोलर मॉलिक्यूल्स। H2O पोलर मॉलिक्यूल्स है, और HCl भी आपका पोलर मॉलिक्यूल्स है ना। नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, देखिए। इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर कंसाइड कर रहे हैं, है ना। कैसे कर रहे हैं, कंसाइड कर रहे हैं। यहाँ ये आपका क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कंसाइड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है आपने, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है ना। The dielectric is said to be polarized by the external field. So we consider only the simple situation when the induced dipole movement is in the direction of the field and is proportional to the field strength. Okay. So substances for which the assumption is true are called the linear isotropic dielectric. A dielectric with the polar molecules also develop a net dipole moment in the external field, but for different reason. This is the polar molecules. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ज़ीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ये बैलेंस्ड है और यहाँ पर अनबैलेंस्ड है ना। मतलब जो यहाँ पर कैंसिल आउट कर रहा होगा एक का इफेक्ट दूसरे के इफेक्ट से, बट यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं कर रहा है ना। तो दो सिचुएशन होती हैं। पहला है डाइलेक्ट्रिक डेवलप्स नेट डाइपोल मूवमेंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो क्या होंगे, तो ओरिएंटेशन होगा ना मॉलिक्यूल्स का। तो यहाँ भी रीओरिएंटेशन हुआ है और यहाँ भी रीओरिएंटेशन हुआ है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर सेंटर में थे नॉन पोलर थे, और यहाँ पर वो सेंटर में यहाँ पर कंसाइड थे नॉन पोलर में, और पोलर मॉलिक्यूल्स में कंसाइड नहीं है। ओके, तो इन ईदर केसेस व्हेन देयर whether polar or non-polar a dielectric develops a net dipole moment in the presence of external field, the dipole moment per unit volume is called the polarization. डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है कि पोलराइजेशन का मतलब है कि क्या डाइपोल का मूवमेंट हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम। द डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक्स है। बच्चे MSc कर लेते हैं, PhD भी कर लेते हैं, उनको मालूम नहीं होता
कि व्हाट इज़ द पोलराइजेशन। 12th क्लास का नहीं मालूम होता कि पोलराइजेशन क्या है। तो पोलराइजेशन क्या है, द डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द पोलराइजेशन। पी इज कॉल्ड द डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज द पोलराइजेशन एंड इट इज़ फॉर द लीनियर मटेरियल्स के लिए क्या होता है ये, एप्सिलॉन ज़ीरो चाई ई इलेक्ट्रिकल सस्पेक्टेबिलिटी है, चाई ई जो है इज़ अ कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड इट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रिकल सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रियम। It is possible to relate chi to molecular property of the substances, but we shall not pursue that here. The question is, how does the polarized dielectric modify the original external field inside it? Let us consider for simply a rectangular dielectric placed in a uniform external field E0 parallel to the two of its faces. The field causes a uniform polarization P of the dielectric. देखिए यहाँ पर आपने क्या किया है, एवरी वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा वी ऑफ द स्लेब हैज़ डाइपोल मूवमेंट पी डेल वी इन द डायरेक्शन ऑफ पी फील्ड। तो यूनिफॉर्मली पोलराइज डाइलेक्ट्रिक अमाउंट्स टू इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी बट नो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर क्या रहेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगा लेकिन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन एंड पोलराइजेशन इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो इन फिगर 2.23 the positive ends of dipole remain unneutralized at the right surface and the negative end of the left surface. The unbalanced charge are the induced charge due to the external field. So thus the polarized dielectric is equivalent to the two charge surface with induced surface charge densities sigma p or minus sigma p. तो यहाँ right side में sigma p positive and left side there is a negative of sigma. So now we consider next definition, again very important, is capacitor and capacitances. So capacitor is a system of two conductors separated by a insulator. Thus conductor have say charge Q1 and Q2 and potentials V1 and V2. Usually in practice the two conductors have charge Q and minus Q and the potential difference V is equals to V1 minus V2 between them as shown in this figure. You can see this is the conductor 1 having the positive charge, this is the conductor 2 having the negative charge. Positive charge attracting the negative charge and there is between the insulators between them, this is the plus Q and minus Q, and the potential difference between two is V1 minus V2. The electric field in the region between the conductor is proportional to the charge Q. That is, if the charge on the capacitor is say doubled, the electric field also be doubled at the every point. Now the potential difference V is the work done per unit positive charge in taking a small test charge from the conductor 2 to 1. अगर 2 से 1 की तरफ small test charge को ले जाएंगे, so it will be the against the field the work. So the consequently V is also proportional to the Q and the ratio Q by B is a constant and C is equals to Q by V. C is equals to Q by V. The constant C is called the capacitances of the capacitor. Okay, so against the field consequently क्या हो जाएगा, V is proportional to the Q. कहाँ से आया ये हमारा डेफिनेशन, V is proportional to Q. जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा आपका पोटेंशियल होगा। और यहाँ पर C जो है, C आपका क्या है, ये आपका proportionality constant हो गया C. C is your proportionality constant and this is known as the capacitor constant, and C is independent of Q or V as stated above. The capacitance C is depend only on the, इस पर डिपेंड करता है सिर्फ ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। एक तो चलिए किस पर डिपेंड कर रहा है कैपेसिटर, तो कैपेसिटर ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, शेप, साइज, सेपरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ टू
conductor. It also depend on the nature of the insulator dielectric separating the two conductor. तो उस पर भी डिपेंड करना है, पहले सेफ साइज पर और आइसोलेशन पर, जो आइसोलेशन हमने दिया है. SI यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट, और फैराडे इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट. द कैपेसिटर विद अ फिक्स कैपेसिटेंस इज सिम्बॉलिकली सोन एज दिस वन. मतलब अगर फिक्स कैपेसिटेंस है, वेरी नहीं कर रहा है, ये है. अगर फिक्स कैपेसिटेंस है, वेरी नहीं कर रहा है, तो ये हो गया. और अगर वेरिएबल कैपेसिटेंस है तो कैसे शो करेंगे इसको, इस तरीके से. ये वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है कैपेसिटेंस. सो हाई पोटेंशियल डिफरेंस implies strong electric field around the conductors. A strong electric field can ionize the surrounding air and the accelerated charge, so produce the oppositely charged plates, thereby neutralizing the charge on the capacitor plate at least partially. In other words, the charge of the capacitor leak away due to the reduction in insulating power of the intervening medium. So the maximum electric field that a dielectric medium can withstand without breakdown is called the dielectric strength. चलिए, ये डेफिनेशन डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की है. द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डायलेक्ट्रिक मीडियम कैन बी विदस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन, बिना ब्रेकडाउन के ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. फॉर एयर के 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर. फॉर अ सेपरेशन ऑफ द कंडक्टर ऑर्डर ऑफ 1 सेंटीमीटर और सो, द फील्ड करस्पॉन्ड टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 × 10⁴ वोल्ट बिटवीन द कंडक्टर्स. ओके. So capacitor to store a large amount of charge, capacitor किसके लिए है? To store a large amount of charge without leaking. Its capacitance should be higher enough so that the potential difference and hence the electric field do not exceed the breakdown limits. Okay, so put differentially, there is a limit to the amount of charge to be stored on a given capacitor without significant leaking. In practice, a Faraday is a very big unit. The most common units are its submultiples. Multiples is a 1 microfarad and -6 farad, 1 nanofarad and -9 farad, 1 picofarad and -12 farad. So we'll start now from the next lecture the parallel plate capacitor. इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे. तब तक के लिए आप जो हमने आज पढ़ाया है उसको रिवीजन करिए, उसको पढ़िए NCERT की बुक में से. कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सवाल जवाब आपके हैं तो. थैंक यू फॉर ऑल.